Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson what the birds said. A lad named Li Chiang, who lived with his parents in the mountains, understood the language of the birds. One evening, as he was studying, a flock of birds sat on a tree before his window and sang, Li Chiang, on the southern plain, a sheep awaits you by a heap of stones, a fine fat vetter that the dogs have slain. You eat the flesh and we will pick the bones. एक छोटा लड़का जिसका नाम ली चियांग है, अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन्स में रहता था और वो बर्ड्स की लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकता था. एक शाम जब वो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को स्टडी कर रहा था तो उसने आवाज़ सुनी जो चिड़ियाओं ने गाई, ली चियांग ऑन द सदर्न प्लेन. ली चियांग को क्या बोला उन्होंने कि सदर्न प्लेन में जो है शीप तुम्हारा इंतज़ार कर रही है जिसको डॉग्स ने मारा है. तुम जाकर के उसको क्या कर लो, उसको तुम खा लो और उसका जो फ्लैश है वो तुम खा लो, बोन्स को हम ले आएंगे. Li Chiang went and brought the sheep home and cooked it for dinner. The next day morning, a shepherd came and said that one of his sheep was missing. He had found blood on the meadow, had followed the trail, and it had brought him to that house. Li Chiang said that he had brought in the sheep which was killed by the dogs. The birds had told him about it. Nobody believed him as they thought he made up the story. He was taken to the prison. अब ली चियांग ने क्या करा, वो शीप को घर लेके आ गया और डिनर में उसको बना के खा लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग में जो शेफर्ड था उसकी जो शीप गायब थी वो उसको ढूंढते हुए वो ली चियांग के घर पहुंच गया. और वो वहाँ कैसे पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्टेन्स थे तो उसके थ्रू से जो है वो उसके घर तक पहुंच गया. जब ली चियांग को उसने बताया कि मैं डेड शीप को लेकर के आया था, मुझे चिड़ियाओं ने बताया था, मैंने उसको नहीं मारा है. किसी ने उसकी बात पे विश्वास नहीं करा और उसको प्रिजन में ले गए. प्रिजन मीन्स जेल. While he was awaiting his trial before the magistrate, a bird flying eastward, perched on the wall, saw him and piped. Foes approached the western border. Foes बोलते हैं दुश्मन के लिए. Banners, bows and spears in order, while the gate lacks watch or warder. Li Chiang urged his jailer to inform the magistrate of the danger of invasion. अब क्या हुआ, जब वो उसका ट्रायल हो रहा था तो उसी समय जो है ईस्ट की साइड से एक बर्ड आई उड़ते हुए और वहाँ पर वॉल में बैठ गई और उसने क्या कहा कि दुश्मन आ गए हैं, उनके पास बैनर्स, बाउज और स्पीयर्स सब कुछ है और वहाँ पर कोई भी जो है पहरेदारी में नहीं है. ली चियांग ने क्या करा, रिक्वेस्ट करी जेलर से कि वो मजिस्ट्रेट को उस खतरे के बारे में बताए. Through the unprotected western pass, the jailer didn't believe in Li Chiang's ability to speak to the bird and was also afraid of the magistrate. So he decided to test the young boy first. He took some rice, soaked a part of it in sweetened water and a part in salt water. Soaked करना means भिगा देना. अब जेलर को जो है उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ. उसने उसको टेस्ट करने के लिए कुछ पार्ट जो है राइस के मीठे पानी में भिगा दिए और कुछ को जो है सॉल्टी वाटर में भिगा दिए. He then spread the whole on the roof of a shed. He brought Li Chiang and asked him if he knew why so many birds were chirping overhead. Li Chiang at once replied that those on the roof were hailing those that were flying past and saying. अब उसने बुला करके जब रूफ टॉप में उसने वो सब बिखेर दिया तो उसको बुला के वो ऊपर ले गया और उसको पूछा क्या उसे पता है कि यहाँ इतनी बर्ड्स क्यों चहचहा रही हैं. अब ली चियांग ने क्या बोला कि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो क्या कह रही हैं, दे वर सेइंग कॉल अ हॉल्ट, कॉल अ हॉल्ट, हियर इज राइस फ्रेश एंड वाइट, हाफ इज स्वीट हाफ इज सॉल्ट, स्टॉप अ बिट टेक अ बाइट. अब उसने बता दिया
कि क्या कह रही है वो, कि यहाँ पर कुछ चावल हैं जो कुछ मीठे पानी में है, कुछ नमकीन पानी में है, रुको और उनको खा लो. The jailer was convinced that the prisoner has understood the speech of birds and therefore hurried away to warn the magistrate. He told the magistrate of the warning and the test. The magistrate sent a swift courier to notify the military officer and a scout was sent out to the west. अब क्या हुआ, जेलर जो है समझ गया कि इसकी बात सही है, ये बर्ड्स की लैंग्वेज को समझता है, तो तुरंत जो है मजिस्ट्रेट के पास गया और उसको सारी बातें उसने बता दी. मजिस्ट्रेट ने भी क्या करा, एक नोटिस भेज दिया मिलिट्री ऑफिसर्स को और स्काउट भी भेज दिया वेस्ट की साइड में. नाउ ली चियांग्स वर्ड्स वर कन्फर्म्ड and troops were dispatched to strengthen the garrison at the pass. The invaders were stopped just in time. The great service rendered to the country by Li Qiang was acknowledged by the sovereign. He was invited to study with the princes and eventually raised to a high rank among the nobles of the empire. अब ली चियांग की जो ये बातें थी सारी सही निकल गई, तो जो मजिस्ट्रेट था उसने भी ट्रूप्स भी भेजे ताकि वो वहाँ पर जो है गार्ड कर सकें और इन्वेडर्स को रोक सकें. और जो ली चियांग के वर्ड्स थे, उन्होंने जो राष्ट्र था उसको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया. तो उसको जो है बाद में क्या मिला, उसको हाई रैंक मिली और जो एम्पायर में जो नोबल्स थे उनके बीच बैठने का मौका मिला, हाई रैंक भी मिली और उसको जो है सबने जो प्रिंसेस थी वहाँ की, उसने उनको वहाँ पर इनवाइट भी किया. तो देखा बच्चों, हमारे ज्ञान और बुद्धिमानी से हम बड़े से बड़े खतरे को भी टाल सकते हैं और हमें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, हम हाई रैंक में भी जा सकते हैं सिर्फ अपने नॉलेज की वजह से. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.